As you know, our today's topic is BPH, a very common problems faced by the family physicians. And in fact, we are the people who are in first contact, and we send the patient for ultrasound whenever there are symptoms of LUTS. So we have with us Professor Shabir Chaudhry Saab, who is a urologist and is working at Allama Iqbal Medical College and Jinnah Hospital. He will enlighten us about the LUTS and management of BPH, its diagnosis and all the complications and management. Dr. Shabir Saab, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much for your kind words and giving me an opportunity to address the prime warriors, the real frontline warrior of our healthcare system. And after coming over here, I think the most important is not for it's being like knowledge sharing. Rather, it is more appropriate to say that all of us are in the age where you should all know too much about the prostate and prostate symptoms. So I think so it may be more beneficial for your patients, but much beneficial for all of us. I'm currently working as an assistant professor at Allama Iqbal Medical College, Jinnah Hospital, Lahore. Before proceeding and before going to these all slides, I think the very important point which we all should know, and just recall in a prostate anatomy, what is prostate, why it is important. I think you all know very well, all are my seniors in respect of age and maybe in respect of clinical experience. Prostate is an important organ. जैसे वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस्म में हर चीज़ का कोई ना कोई बेनिफिट दिया है, तो ये प्रोस्टेट के भी कुछ बेनिफिट्स भी हैं. एंड यू ऑल नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोस्टेटिक secretions. They neutralize the semen and helps in the liquefaction of the ejaculate. So this is not a useless organ. It has many important functions. God forbid if someone undergoes a transurethral resection of prostate or TURP, and after that the most common symptom you may feel, the patient complains that, sir, after sexual intercourse I am unable to ejaculate and there is nothing coming. And he feels that he is suffering from some mardana kamzori, as you know all very well. So it is a very important organ that contributes a lot to the human genital functions, human sexual functions, besides secreting two important hormones. But as you know, this is an age-dependent organ. Hormone dependent or age dependent, you can say. With the advancing age, with the progressing age, the prostate size enlarges. Before proceeding further, I will just recall a little bit anatomy of the prostate. What is prostate? Prostate is an actually fibromuscular gland. This is a gland. As you know very well, if you recall your biology or histology knowledge, its glands consist of stroma and epithelium. Epithelium and stroma. And stroma contains smooth muscles and collagen. So there are basically three components: epithelium, collagen and stroma. That makes an endocrine gland prostate. Its growth is dependent upon the important hormones, that is, one is estrogen and second one is testosterone. Why I said estrogen? Actually, with advancing age, the level of estrogen increases in a man. When the level of estrogen increases, it sensitizes the prostatic tissues. Yeah, you can say that it smooths the action of testosterone. When testosterone required in say for example, I am not talking about the figures, I am just talking about that if you need 5 nanogram of testosterone for a proliferation of the prostate gland, but when there is an ample estrogen, it will sensitize the prostatic tissues, and with 1 nanogram the same effect will come. So with the advancing age, estrogen contents increases, and little bit testosterone makes prostate more proliferative, makes more hyperplastic. And you know that how testosterone acts. Testosterone
is in the body. It is found in two forms, free form, bound form, and its active form is dihydrotestosterone. 5-alpha reductase converts the testosterone in dihydrotestosterone that acts on the prostate tissue, and when it acts on the prostate tissues, it causes increase in number of prostatic cells. Increase in number of prostatic cells. So increase in number of prostatic cells means there is a hyperplasia. There is hyperplasia of the prostate gland. This is a little bit review of the anatomy. Again, there are three components. One is epithelium of the gland, second one is collagen, and then is the smooth muscles. What is benign prostatic hyperplasia? As we know very well, this is in a normal prostate. If you see, this is a normal prostate. But what happens over here? The prostatic size has been increased under the influence of testosterone or estrogen. So this is an enlarged prostate. If you just appreciate, this is prostatic urethra, almost 2 centimeter long, 2 to 4 centimeter long. This is an urethral. This is a prostatic urethra, and this is urethral lumen. If you appreciate over here, this urethral lumen has been narrowing and has been compressed by the enlarged tissues. Most importantly here. And second important thing is that if the prostate is enlarged, what factors are contributing to the development of the low urinary tract symptoms? या simple ज़बान में हम ये कह लेंगे prostate की अलामात कैसे आती हैं? तो there are two ones. एक तो ये है कि यहाँ से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई. दूसरा, जब आप यहाँ से दबाएंगे तो जो पीछे ब्लैडर है, आउटफ्लो रेजिस्टेंस, उसने भी तो आगे से अपना रिस्पॉन्ड करना है ना, कि उसने ज्यादा जोर लगाना है कि यहाँ से ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी ज्यादा जोर लगाऊंगा, उसकी हाइपरट्रॉफी होनी है और उसके बाद ट्राइगोन की हाइपरट्रॉफी होनी है, उसके क्या इफेक्ट्स आने हैं, दैट इज इन अ लॉन्ग डिबेट, वी विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट. These are terms low urinary tract symptoms. As you know, low urinary tract symptoms are actually a set of symptoms that is actually a set of symptoms that occurs after these two mechanisms. One, mechanical obstruction. Second one is response of the bladder to the outflow urethral resistance. So it is divided into two forms, storage and voiding symptoms. मैं इसको बड़ा आसान कर लेता हूँ. जो यूरिन या पेशाब ब्लैडर में आके इकट्ठा होना है, फिर मसाना भरना है, एक लेवल तक जाना है, फिर उसने वाइड करना है, तो वो सिम्टम्स जो यूरिन के कलेक्ट होने की वजह से होते हैं. मसलन एक नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 500 मिलीलीटर ब्लैडर की. 450 पे जाएगा, आपको पहली फील आएगी कि जाएंगे पेशाब करने आए. अब अगर ब्लैडर एक्टिवेट हो जाए, मैं फिर वहीं पे उसी स्लाइड पे दोबारा आऊंगा. अब ब्लैडर एक्टिवेट हो गया यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, यहाँ पे यूरिन 150 ml भी आएगा तो जो सिग्नल देगा बाकी जो पेशाब करके आओ. सो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कि बार बार यूरिन करने जाएगा. ठीक है. फिर इसी तरह से आप अर्जेंसी, अभी आप करके आए हैं वॉशरूम, तो आपको फील आएगा कि मैंने वॉशरूम जाना, तो आपको लगेगा भी निकल जाएगा. दैट इज अर्जेंसी, अर्ज टू मिक्चुरेट. एंड देन इंपॉर्टेंट इज नॉक्चुरिया. रात को आप बार बार जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ब्लैडर की कैपेसिटी, जो कंप्लायंस है, वो कम हो चुकी है. सो दीज आर स्टोरेज सिम्टम्स ऑफ द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स. अब आ जाता है वॉइड करना. अब वॉइड में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं? वॉइडिंग के अंदर क्या है जी? स्ट्रीम पुअर है, धार बारीक है, धार टूट जाती है, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग है, आपने खाली ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो पा रहा. ठीक है. और इसी तरह से इंटरमिटेंसी है, हेजिटेंसी है. इंटरमिटेंसी क्या है? कि पेशाब आ गया रुक गया, आ गया रुक गया, आ गया रुक गया. ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें सिम्टम्स के ऊपर ही हमने इसको क्वांटिफाई करना है. तो क्या है जी इंटरमिटेंसी? क्या? पेशाब आ गया रुक गया. हेजिटेंसी क्या है? मरीज बैठा जाके वॉशरूम के अंदर और फौरन पेशाब नहीं आया, बैठा रहा, टूटी ऑन की, लोटा खड़काया, सारा कुछ किया, वो मोबाइल पे गेम खेल ली, आफ्टर सम टाइम उसका यूरिन स्टार्ट होता है. दिस इज हेजिटेंसी. ये हेजिटेट करता है टू यूरिनेट ब्लैडर. So these symptoms are very important to know. Which of, so after knowing these symptoms, अब आप यहीं से आ जाएं. अगर फर्ज करें स्टोरेज के सिम्टम्स जो मैंने कहा था वो ज्यादा हैं, तो क्या मतलब है? मसाना हसास हो गया है, ज्यादा हसास हो गया है प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से. अगर वॉइडिंग सिम्टम्स ज्यादा हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि मैकेनिकल प्रेशर ज्यादा आ रहा है.
मैकेनिकली प्रोस्टेट ने जाके मीडियन लूब ने अंदर जो यूरिथ्रल ल्यूमेन उसको नैरो कर दिया है। तो यहां से भी आप क्लिनिकली ऑन हिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, आप गैस लगा सकते हैं कि ये प्रोस्टेट किधर जाएगा, इस पे सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, ये प्रोग्रेस करेगा या नहीं करेगा। सो once again this slides you should keep in your mind. जी जी मैं उधर आ गया था, ये आगे है भाई। So benign prostatic hyperplasia, you all know histological term of benign prostatic enlargement, bladder outlet obstruction. Bladder outlet obstruction is also a vague term. Here, if the bladder outlet is obstructed due to prostate enlargement, due to stricture, due to any urogenital diaphragm abnormality, then this is called bladder outlet obstruction, BO. BPO, benign prostatic obstruction. No, my senior posed a very important question. What is bladder outlet? Bladder? Overactive. OAB, overactive bladder. Yes. Overactive bladder is the abnormal contractions or response of the bladder to the storage urine. Like here, before proceeding further, we will मेरा ख्याल overactive bladder भी यही डिस्कस कर जाते हैं। आप जानते हैं डिट्रूसर इनर्वेशन क्या होती है? पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट करे, जब आप यूरिन करते हैं पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है, डिट्रूसर को कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसको क्या करेगा? रिलैक्स करता है। दिस इज वॉइडिंग फेज, दिस इज पैरासिम्पैथेटिक। अब व्हेन हियर there is this is rich in sympathetic fibers, sympathetic receptors, you can say alpha fibers and beta fibers here at the neck of the bladder and at the urethral level and the prostatic urethral level. When you are in normal phase, जब मसाना भर रहा होता है, तब क्या होता है कि sympathetic क्या करता है कि यहाँ पे प्रोस्टेटिक या इंटरनल स्फिंक्टर को कह लें कंट्रोल करके टाइटली क्लोज रखता है। ये क्लोज रखता है, ऊपर से आता रहता है। अब क्या होता है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो जो आपका वो है, क्या उसे कहते हैं कि डिट्रूसर है, वो ओवर एक्टिव हो गया, पैरासिम्पैथेटिक ने फौरन उसको कहा जी चलो जी कॉन्ट्रैक्ट करो। या क्या हुआ है कि यहां पे आके आपका क्या हुआ है कि सिंपैथेटिक का, अपने सिंपैथेटिक टोन का लॉस हो गया। So overactivity of the parasympathetic or the underactivity of the sympathetic system can lead to overactive bladder. It like normally when you go above 350 you feel desire to micturate, but in overactive bladder even if you have 25 ml urine, the brain will signal go for an voiding. So this is overactive bladder. As I already told you, age and hormonal factors both are important, but underlying cause needs. I think this is what I have already told you, that dihydrotestosterone is very necessary. This is very important. Castrated patients do not well BPH. If we remove testes, this is very important. If we remove testes, do an orchidectomy, then the prostate size is regressed because the level of testosterone has been drastically reduced. The same analogy, yes, same technique has been applied for the prostatic cancer. In America, I think this is a little bit alleviated, but here in Pakistan, where we have anti-androgens, very costly, like flutamide, glutamide. This is very costly. Here we offer a surgical castration, like we remove both testes, and after that the size of prostate cancer is drastically reduced and patients comes to the normal life. So this one is what we have already discussed. Here is the fourth most diagnosed condition in men greater than, this is US data, I never ever of favor of presenting your result. This is serum testosterone, this is dihydrotestosterone 5-alpha reductase type 1 and androgen receptor complex, increased number of cells. Cell death has been decreased and number of cells has been increased. So 5-alpha reductase is very important for conversion of testosterone to dihydrotestosterone. As we already told you, storage symptoms, then is voiding symptoms. BPH diagnosis. The most important is medical history. Believe me, this is my personal experience. You have no need of all of these things if you focus over here very precisely.
अगर आप उससे ये पूछ लें, और यूजली हमारे मरीजों की आदत होती है कि आपको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, बैठेगा तो आपको पूरी स्टोरी सुनाएगा, डॉक्टर साहब मैं चलदा वा, फिर मैं तोती खोलदा वा, फिर मैं तोती खोल के बहना वा, फिर मैं बहना वा, फिर डॉक्टर साहब मैंने ख्याल आंदा वा। तो अगर आप उसकी सारी बात सुनने के बाद आगे क्वेश्चनर भी आता है, वो आप पूछ लें, आप उनको कहेंगे अपने हाँ या ना में जवाब दें, आई थिंक आप हिस्ट्री पे डायग्नोज कर जाते हैं। मे बी दिस इज लिटिल बिट यू नो के बुजुर्ग माइंड करते हैं कि आप उनको ये कहेंगे मेरा हाँ या ना में जवाब दें, लेकिन आप पूछ लेंगे तो मेरा ख्याल वो माइंड ना करें। तो आप उनको सिर्फ ये पूछ लें रात को कितनी दफा उठते हैं, नंबर 1 7 कंपोनेंट्स बन जाते हैं, रात को कितनी दफा उठते हैं, दिन में कितनी दफा जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये बताएं कि जब पेशाब करने जाते हैं, ऐसे तो नहीं लगता रास्ते में निकल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये आता है पेशाब करने के बाद आप सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, मसाना खाली हो गया, दाढ़ ठीक आती है, दाढ़ टूट तो नहीं जाती, पेशाब पूरे चल जाता है, दरमियान में बंद तो नहीं हो जाता, बाथरूम में बैठते ही पेशाब आ जाता है या नहीं आ जाता। इफ द आंसर इज इन यस इन मोस्ट ऑफ द आइटम्स, you know you have been almost reached about the diagnosis. इवन यहाँ पे भी अगर उसके स्टोरेज सिम्टम्स ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इरिटेशन ज्यादा ब्लडर की, अगर वाइडिंग सिम्टम्स ज्यादा है तो इसका मतलब कि मैकेनिकल कंपोनेंट्स वो ज्यादा हैं। अब यहाँ से डायग्नोसिस से भी पहले मैं फिर आपको कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमने फिर हिस्टोलॉजी पे जाना है। ग्लैंड है, एपिथेलियम है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में क्या क्या चीजें हैं, स्मूथ मसल्स हैं, कोलेजन है, आपकी पूरी ट्रीटमेंट इस पे बेस होती है। तो इफ यू जस्ट रिमेंबर इन दिस, सो सिम्टम्स असेसमेंट यू ऑल नो, देयर इज वेरी वेल नोन AUA अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन सिम्टम स्कोर है, IPSS कहते हैं, इंटरनेशनल प्रोस्टेटिक सिम्टम स्कोर। इट इज एक्चुअली 7 elements, there are 7 elements, 7 symptoms, we rate them 0 1 2 3 4 5, 7 multiplied by 5, so total score of international prostate symptom score is 35। 0 से 35 का स्कोर आएगा और उसी पे आपने रेट करना माइल्ड क्या है, मॉडरेट क्या है, सीवियर क्या है, उस पे आपकी सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस चलनी है। सो इंटरनेशनल प्रोस्टेटिक सिम्टम्स स्कोर्स इवन आप मोबाइल में डाउनलोड कर लें, अब आपके मोबाइल में आप एंटर करते जाएं, उसकी ऐप अवेलेबल्स हैं, तो वो पेशेंट्स खुद उस पर कर सकता है। आपके पास प्रिंटेड ये जो डॉट वाले हमारे GSK वाले भाई दे जाते हैं, वो परफॉर्मेंस पे टिक कर लें, तो एक रूटीन बना लें कि इंटरनेशनल प्रोस्टेटिक सिम्टम्स को जरूर कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे अल्ट्रासाउंड्स के भी आपको पता है बहुत सारे इश्यूज हैं, द गुड सोनोलॉजिस्ट आर टू मच बिजी एंड इवन नो कि डाई साहबा भी कर देती हैं, तो वो इसलिए एक वो गिलानी साहब हैं कोई, तो वो भी उनके भी अल्ट्रासाउंड में तो खैर इस पे फोकस ही नहीं किया। तो इस तरह के लोग जो कमर्शियल हो चुके हैं अल्ट्रासाउंड, तो सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट रिलाई ऑन अल्ट्रासाउंड, rely on your clinical assessment. This is the best method in prostate. If you score make an international prostate IPSS score बना लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कहाँ पे जाना है, मैंने कॉम्बिनेशन थेरेपी पे जाना है, मैंने अलोन थेरेपी पे जाना है। Then is urine analysis. उसमें अल्ट्रासाउंड में वो हमें बता देते हैं कि इतने ग्राम्स है। मैं उधर साइज पे भी आता हूँ, वो that's very important actually. You know the crux of whole discussion would be के size. Why we always consider on size. वो जैसे अब वो कहते हैं ना कि उसको मेरा रिसर्च जो थी MS की वो एंड्रोलॉजी पे थी, तो मैंने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे बड़ा काम किया, मेरा इंटरनेशनल पेपर भी उस पर पब्लिश होने वाला इंशाल्लाह एक्सेप्ट हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टडी इन पाकिस्तान, वो भी मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एट द एंड वेयर इज एन फंक्शन। तो वहां पे उसने एक बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, एक है मैकमोहन, ही इज एक्चुअली स्पेनिश, ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन एंड्रोलॉजी। तो उसने एक जगह पे अपने एक पेपर में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि द साइज डजंट मैटर नाउअडेज, तो साइज ऑफ प्रोस्टेट डजंट मैटर नाउअडेज। तो होप सो कि हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब सर सिम्टम असेसमेंट्स हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, लो यूनिट एक्स, मैंने इसको सिंपल कर दिया, इन्होंने बड़ी मुश्किल सी कर दी हुई है, तो इसलिए जो है आपने इसी पे रहना है। इंटरनेशनल प्रोस्टेटिक सिम्टम स्कोर IPSS कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चंस, एक उसमें 1 क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको साइड पे कर दें, 7 आइटम्स आपने पूछनी है। मैंने उसका वैसे फार्मूला एग्जाम्स के दिनों में याद किया था काफी 2 साल पहले। IUI विल स्ट्रेन नक्चूरिया, इंटरमिटेंसी, अर्जेंसी, इनकम्प्लीट एम्पटिंग, फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेनिंग और नक्चूरिया, वो 7 आते हैं, लेकिन वो याद करने की आपकी जरूरत नहीं है, मेरे पास प्रिंटेड आ गए हैं। अब उसके ऊपर ये क्वेश्चन भी आ गया, वो ये देखें, एरो से 7 क्वेश्चन जी, ये पॉइंटर एरो से आगे पीछे कर सकते हैं जी, ठीक है सर। अच्छा,
इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, फ्रीक्वेंसी, इंटरमिटेंसी, अर्जेंसी, वीक स्ट्रीम, स्ट्रेनिंग, नक्चुरिया, ये 7 है, 7, 5, 35। ठीक हो गया सर, ये है। देन फिर आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो आगे वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये देखिएगा टोटल कितना है, 35 है। 0 से 7 जो स्कोर है दैट इज माइल्ड, 0 से 7। 8 से 19 मॉडरेट है। 20 से 35 जो है सीवियर है। इसमें से आप जो पेशेंट बताएगा लेस देन 1, लेस देन हाफ, वो आप उसके मुताबिक करते हैं। आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस वन। एंड दिस वन इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट element for the management of benign prostatic hyperplasia in your mind should be the improvement of the quality of life। अगर एक बुजुर्ग हैं, वो रात को 5 दफा वॉशरूम जाते हैं, नींद पूरी नहीं हो सकती, तो आप अंदाजा लगा लें कि उनकी जिंदगी किस तरह अफेक्ट होगी। या उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं, या वो रास्ते में जाते यूरिन निकल जाता है। यू नो इन ओल्ड एज द पेशेंट्स आर वेरी मच कंसर्न अबाउट पाकीज़गी और नमाज, और वो आप उनको बताएं भी ना बीमारी में हो सकती है, दे डोंट एग्री विद यू, कहते नहीं 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 नहीं, पाक होना जरूरी है। तो सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जिस जो सिम्टम्स आ रहे हैं उससे आप डिलाइटेड हैं, 0 स्कोर है, प्लीज्ड हैं, मोस्टली सेटिस्फाइड है, मिक्स्ड है, कभी खुश कभी नहीं, मोस्टली डिस्टर्ब्ड हैं, अनहैप्पी हैं, या टेरिबल लाइफ है आपकी। तो इफ यू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद योर यूरिनरी कंडीशन द वे इट इज नाउ, हाउ वुड यू फील अबाउट देम? दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये एक और क्वेश्चनर्स है। देन यूरिन एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक चीज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ, डिस्टल यूरिटरी कैलकुलस, प्रोस्टेट और यूटीआई, they 3 conditions almost present with the same symptoms, almost। मेरा ख्याल है कि इनको डिफरेंशिएट करना is very tricky। UTI, prostate and distal urinary calculus। distal urinary calculus भी usually low unit symptoms का प्रेजेंट करता है आमतौर पे। तो some urine analysis is very important, at least you will rule out the infection। so urine analysis is very important। As told you, frequency volume charts and bladder diaries with due apology to the extent of teaching and to extent of the learning and to the extent of this presentation, it is very good. But practically in our practice setup, where my respectable senior has to attend more than 100 patients per day, I think it's not feasible for you. Can tell the patients if they can do. Then is the most important is prostate specific antigen measurement. PSA. What is PSA? Actually, PSA is an enzyme that is secreted by prostate and many other organs of the body, but in very negligible amount. So PSA is a organ specific, not the disease specific. वो आगे हम इस पे बात कर लेंगे। And it's very important, prostate specific antigen measurements, this is not, प्लीज एक चीज याद रखें, PSA प्रोस्टेट कैंसर की मेजरमेंट का नाम नहीं है, ये अब पुराना हो गया आइडिया। PSA इज द नेम ऑफ द साइज ऑफ द प्रोस्टेट, साइज ऑफ द प्रोस्टेट। हम आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उन्होंने कहा था मेरे सीनियर ने, रिस्पेक्टेबल सर ने, कि पोस्ट वाइड रेजिडुअल वॉल्यूम अल्ट्रासाउंड के ऊपर, ये मैंने वो सब मेरे लिए ऑर्गन स्पेसिफिक बट नॉट डिजीज स्पेसिफिक, सॉरी, yes, this one. Elevation of serum PSA is characteristics of prostate disease such as carcinoma of prostate and benign prostatic hyperplasia. So PSA can be raised in simple BPH even, then हम इसको normal value क्या है, less than 4 gram nanogram, less than 4 nanogram. But I have seen such patients who have 10 PSA when we go for core biopsies, when we go for DRE, digital rectal examination. Believe me, there was absolutely benign prostatic hyperplasia. बंदा साइकिल चलाता है, PSA बढ़ जाएगा, मैनिपुलेशन की हुई है, जाके PSA का सैंपल दे दिया, कैथेटर लगाया हुआ, जाके सैंपल दे दिया, PSA will be raised। प्रोस्टाटाइटिस में PSA रेज होता है। मैंने कहीं पे ये पढ़ा था, मुझे याद है किसी एक पेपर के ऊपर, कि उन्होंने साइकिल चलाने वाले साइकिलिस्ट और उनका PSA लेवल्स किए थे, नॉर्मल लेस देन 40 इयर्स एज के बंदों का PSA रेज था। तो सो PSA इज ऑर्गन स्पेसिफिक, नॉट डिजीज स्पेसिफिक। दिस इज द मैसेज। क्रिटिकल वैल्यू क्या है सर? लेस देन 4 इज द नॉर्मल, above 4 to 10 will alarm you, maybe a CA prostate, but above 10 there are the more chances for CA prostate।
So as I get Post word. sorry, this one I think I will handle over here. Along with prostate size, serum PSA provides prognostic information, prostate growth, symptoms, and bother. If the PSA is raising, so you mean your symptoms are going to worse. Your symptoms are going to worse, and you are making your life terrible. Then is the flow rate worsening risk for AUR. AUR mean acute urinary retention. If the PSA value is gradually increasing despite having the medication and patient went into acute urinary retention followed by catheterization, मरीज का पेशाब बंद हो गया, आपने उसको नाली लगा दी, and then if PSA values are raised, it means your chance for AUR and surgery are increasing. Then post-void residual volume. अब यहाँ पे वही वाली बात जो मैंने आपसे की थी, नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है ब्लैडर के अंदर? 0, ठीक है ना, मसाना पूरा खाली होना चाहिए, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब आ जाए वही जो बात मैंने आपसे की थी कि प्रोस्टेट साइज लेस, नॉर्मल साइज इज 40 ग्राम। अब नई गाइडलाइंस है कि कोई नॉर्मल साइज नहीं है। एक पेशेंट का 30 ग्राम प्रोस्टेट है बट ही हैज सीवियर प्रोस्टेटिक सिम्टम्स, स्कोर इज फॉलिंग इन 35, एंड अदर वन इज मियां वली का बाबा, उसका 100 ग्राम का प्रोस्टेट होगा, कोई सिम्टम्स ही नहीं है, डॉक्टर साहब फलाई गई, ठीक है। तो सो साइज डजंट मैटर, द मैटर इज, फिर मैं वही इस तस्वीर पे चला जाऊंगा कि 30 ग्राम का प्रोस्टेट है, मीडियम लोब इनलार्ज हुआ, उसने जाके यूरेथ्रल ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो सिम्टम्स आ गए। फिर प्रोस्टेट ने ऑब्स्ट्रक्शन को, आपके ब्लैडर ने रिस्पॉन्ड किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रिस्पॉन्ड किया, फिर सिम्टम्स आ गए। अब 100 ग्राम का प्रोस्टेट है और उस पर सिम्टम्स नहीं आ रहे, क्यों? मे बी यूरेथ्रल ल्यूमेन इज नॉट गोट बी नरिंग। देन इंपॉर्टेंट इस मैकनील ने 1979 में क्लासिफिकेशन की थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैं वो बहुत ही ज्यादा एकेडमिक सा हो जाता है। तो तुम्हें उसमें क्या कहा था उसने? पेरिफेरल जोन होता है 70%, ट्रांजिशनल जोन होता है 25%, 5% 25% सेंट्रल जोन होता है, 5% ट्रांजिशनल जोन होता है। जो ट्रांजिशनल जोन होता है वो कहाँ होता है भला? वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के इर्द गिर्द होता है, ट्रांजिशनल जोन। तो बीपीएच कहाँ से राइज करता है? ट्रांजिशनल जोन से। तो इसलिए प्रोस्टेट में जब बिनाइन एनलार्जमेंट होती है तो सिम्टम्स फौरन आ जाते हैं। सीए प्रोस्टेट कहाँ से राइज करता है? पेरिफेरल जोन से। सो आपने नोट किया होगा कि बाद सीए प्रोस्टेट का मरीज आए वहीं आ जाता है, आपके पास बोन पेन के साथ आता है और मेड्स पड़े होते हैं, उसको लोअर सिम्टम्स होते ही नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कि चूंकि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या इनलार्जमेंट जो है वो कहाँ पे होती है? ट्रांजिशनल जोन में। दैट इज ओनली 5% ऑफ द प्रोस्टेट, 5% है, लेकिन क्या है, यूरेथ्रल प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के इर्द गिर्द है तो वो उसको कंप्रेस कर देता है। रेजिडुअल वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द वॉल्यूम पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम इज गोइंग टू इनहांस मोर देन 150 ml, then there is an indication of a surgery, and there are chances that the prostate will progress, there is chances that the patient will undergo into acute urinary retention. Then imaging of the prostate, this is very important. 150 more than 150 is indication for surgery जी। 40 नहीं है, 150 150 सर ये आईवीयू में प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की इंटरवेंस यूज मैं इसका बताता हूँ आगे। IVU is something else, that has absolutely no role in the prostatic imaging. Imaging of the IVU is actually, that is intravenous urography, that is usually used for imaging the anatomy of the upper urinary tract. This is a problem of the lower urinary tract. Here you will, the most important is abdominal ultrasound and most specific is transrectal ultrasound. तो हमारे आपको पता है सोशल इश्यूज की वजह से वो करते भी नहीं होता, अब्डोमिनल करते। अब आइंदा से आपने अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड रीड करते हुए क्या मैसेज है आज का, क्या पढ़ना है? पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, PMRV, पोस्ट मैच्योरेटिंग रेजिडुअल वॉल्यूम। आपने ये देखना है, साइज नहीं देखना, साइज नहीं देखना, और सिम्टम्स पे जाना है, सिम्टम्स स्कोर पे जाना है। तो प्रोस्टेट मतलब मैं एक कहता हूँ, बाज लोगों की शेप ऐसी है कि आपने प्रोब ऐसे करके रखा तो लंबा सा साइज आ गया, ठीक है, यूं लॉन्गिट्यूडनल आ गया, ठीक है। तो एक ने ऊपर से रखा, उसने यूं करके दे दिया, वर्टिकल दे दिया, तो मेजरमेंट्स ही नहीं आती। और सबसे इंपॉर्टेंट वो कहते हैं कि 3 चीजें जरूर करें हर आने वाले मरीज की, आप जो जीपी कर सकते हैं और आई थिंक आपको करना चाहिए। नंबर 1 PSA लेवल करा लें, नंबर 2 डिजिटल रेक्टल एग्जाम। डिजिटल करते हैं आजकल सर जरूर करना चाहिए, दिस इज हाईली रिकमेंडेड। आपका पहले करना चाहिए, PSA से पहले नहीं, PSA भिजवा दें, अगर आपने DRE कर लिया तो फिर 3 दिन का वक्फा करें,
फिर वक्फा करें। सर DRE जो है ना, मतलब मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो इवन अपने ट्रेनिंग्स को भी कहता हूँ कि ग्लव्स रख के बैठ जाओ और जो मरीज आता है अल्ट्रासाउंड देखो या देखो उसका DRE जरूर करो। अब तो इतना ज़ाइलोकेन इतनी अच्छी आ गई, आप लगाएं उसी वक्त अब्जॉर्ब हो जाती है। DRE इज द मोस्ट, देखिए आपको जो अपनी उंगल से फील आ रही है ना वो आपको नहीं है, आपको उसकी कंसिस्टेंसी पता चल गई, आपको मीडियम लूप पता चल गया, आपको उसकी लिमिट पता चल गई, इससे ज्यादा आपको आपके लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है जी, टून कैसी है ये वो फॉरगेट अबाउट इट। में जितनी चीजें होती है ना, एक अपर लिमिट, रीचेबल और नॉट रीचेबल, लेटरल लिमिट्स रीचेबल और नॉट रीचेबल, कंसिस्टेंसी कैसी है, ग्रो फैक मीडियम लूप मोबाइल है कि नहीं, मोबाइल, तीन चीजें होती हैं, 3-4 चीजें बस ये हार्डनेस जो है, जैसे बोनी हार्ड या स्टोनी हार्ड फील आ रही है अगर, वो तो ये सीए की तरफ ये जाती है या ये? बिल्कुल, अगर देखें ऑब्वियसली अगर हार्ड कंसिस्टेंसी है ना प्रोस्टेट की, इट डेफिनेटली एंड अप इन द कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। एक और कंडीशन भी है जिसमें हो जाता है, देखें क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस है, वो हो के कैल्सिफिकेशन हो गई है, प्रोस्टेटिक कैलकुलस भी है, बट दैट इज इन अ स्पेशलिस्ट लेवल। आई थिंक एट योर लेवल द कंसिस्टेंसी इज सॉफ्ट, how is either it is soft, hard, stony hard, so you will differentiate among these three. If you feel there is some nodule and if you feel it is an hard inconsistency, better go for PSA levels or trust guided biopsy. और मीडियन सल्कस की कोई क्या इंपॉर्टेंस है सर, कि ऑब्लिटरेशन ऑफ द अब नहीं, मीडियन लूप की इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिटरेशन का मतलब यह है कि प्रोस्टेट इनलार्ज है, ठीक है। अगर मीडियन है, अब मीडियन सल्कस को कितना एक देयर वाज अ टाइम व्हेन सर्जन्स यूज्ड टू deal the prostate, then they given so much important. I think मीडियम लोब को देखा जाए तो मीडियम लोब को एलाइनमेंट होती है। सर देखें, आप जब आप फिंगर करेंगे ना, आप पहले ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे जाएंगे, फिर आप अपर लिमिट को करेंगे। आप फर्ज करें आपकी मिड के अंदर आपकी उंगल को फील हो रहा है कोई नोड्यूल टाइप या कोई चीज एनलार्जमेंट आ रही है और ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है ल्यूमन को, इट मीन दिस इज मीडियन लूप, इट्स इनसाइड ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। Peritoneum over the prostate is also moved, but should be moved. Not peritoneum, epithelium, epithelium. Mucosa. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। MR फ्लो रेट, अच्छा फ्लो रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट यूज्ड टू है। इसमें आमतौर पे तो एक इसका तरीका ये भी होता है कि पेशेंट्स को आप बर्तन देते हैं और उसको कहेंगे इसमें यूरिन कर और साथ टाइम नोट कर, अगर तो 1 मिनट के अंदर 150 से ज्यादा उसमें इकट्ठा हो जाता है तो उसका मतलब नॉर्मल फ्लो रेट है। ये भी आप कर सकते हैं, मतलब इट इज नॉन इन्वेसिव टेस्ट, तो ये इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रोस्टेट के अंदर भी फ्लो रेट कम हो जाएगा, स्ट्रक्चर में भी कम हो जाएगा, तो फिर वो वहीं पे आप उतने स्पेसिफिकली सिस्टोस्कोपी करनी पड़ेगी बाद। हाँ जी, वो तो बात की चीज़ है। नो मेरा ख्याल थोड़ा हम लंबा होते जा रहे हैं। कम टू द पॉइंट जो हमने अभी तक डिस्कशंस की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट द साइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, नंबर 1। एक चीज तो ये हम साइड पे हो गया। सेकंड वन इज सबसे जरूरी है सिम्पटम स्कोर, कि पेशेंट का सिम्पटम स्कोर कैसा है, उस पे हमने डिसाइड करना। दूसरा, हमने ये चीज अब तक के लिए लर्न कर ली कि प्रोस्टेट की ग्लैंड है, उसमें एक एपिथेलियम है, एक उसमें स्मूथ मसल है, दूसरा कोलेजन है। ये मैं बार बार इस पे क्यों फोकस कर रही हूं, मैं आपको ट्रीटमेंट पे दूंगा। फिर अगली एक बात हमने की थी कि नेक ऑफ द ब्लैडर पे अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं सिम्पथेटिक सिस्टम के, और डिट्रूसर को कौन सी चीज कंट्रोल कर रही होती है, पैरासिम्पथेटिक। ब्लैडर नेक एलिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस होती है इसमें? हाँ, अब इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हाई नेक। अब देखें कि ब्लैडर का जो यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ब्लैडर का जो एंगल होता है ना, दैट इज ऑलमोस्ट 180 ही होता है, ठीक है, मैक्सिमम 30 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल प्लेन होते हैं। जब आप हाई नेक आते हैं ना, अब ये देखें, ये नेक यहाँ पे चलेगी, ये एंगल कहाँ पे चला गया, अब यूरिन को यूं घूम के यूं आना पड़ेगा, ठीक है। हाई नेक मीन कि नॉर्मली ऑब्स्ट्रक्टिंग नेक, हाई नेक मीन कि उसको यूरिन आउटफ्लो उतने रहा, एक देखें एक सीधा जा रहा है, एक ऊपर से यूं घूम के आ रहा है, सो एक कर्व बन गई ना उसकी। इसकी डायग्नोसिस सिस्टोस्कोपी पे होगी, सिस्टोस्कोपी इस पर नहीं आम नहीं कर सकते, नहीं, ये इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन पे ही आएगा। सो द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट हैज बीन टू अलिविएट बॉदरसम लर्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमने डिजीज की प्रोग्रेशन को रोकना है। हर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया सीए प्रोस्टेट नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, हर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जो होती है आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ और टाइम के साथ क्या करती है, बढ़ती है। हमने उसको बढ़ने से रोकना है। वो कैसे रोकना है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। BPH इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन इन मैनी मेन। अब आपने किसको कौन सी थेरेपी देनी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आने हैं। सबसे पहले तो देखें ना, एस्टैब्लिश डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफाइन क्लिनिकल प्रोफाइल, देन एविडेंस बेस्ड बेस्ट ट्रीटमेंट देनी है। हमने रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेने, मिनिमाइज डिजीज प्रोग्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट।
देन इज मेडिकल ट्रीटमेंट, देन इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, आप उसी स्कोर पे आ जाए। अगर स्कोर 1 से 7 तक आता, माइल्ड आता है, तो ट्रीटमेंट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या है? वॉचफुल वेटिंग and 3 monthly evaluation of the patients with PSA levels, with ultrasonogram, post-maculating residual volume, and again after 3 months you will count the score, prostatic symptom score। अगर उसका जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था 7 था, अब 5 हुआ है, या 7 से 13 पे चला गया, दोनों सूरतें आपको बता रही हैं। अगर कम हुआ तो उसकी डिजीज प्रोग्रेशन रुक गई है, अगर बढ़ गया तो इसका मतलब डिजीज इज गोइंग टू प्रोग्रेस। So this is a conservative treatment। Medical treatment is usually result from moderate symptoms, that is 8 से 19 के स्कोर के लिए है, मॉडरेट स्कोर के लिए है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर तो सर्जिकल की एब्सोल्यूट इंडिकेशंस आ गई हैं, नंबर 1 वो कौन सी, वो मैं आपको बता देता हूँ, या सीवियर लट्स हैं, उसको स्कोर क्या है 20 से 35 है, 20 से 35। एब्सोल्यूट इंडिकेशंस क्या है? रिपीटेड इन्फेक्शन। मैं आपको लिटरली बताऊं, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो रीनल फेलियर के साथ आए हैं, और था क्या उनको बीपीएच। सबसे ज्यादा जो किडनी को अफेक्ट करता है वो बैक प्रेशर है, किडनी का बेड़ा गर्क कर सकता है। आप देखें पीयूजे होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस कह लें, बैक प्रेशर कह लें, जब आपका प्रोस्टेट यहां से कंस्ट्रिक्ट हुआ, बैक प्रेशर जा रहा है, इट विल लीड टू द रीनल फेलियर। सो अगर रीनल इनसफिशिएंसी हो गई है प्रोस्टेट की वजह से, आप सर्जरी पे जाएंगे। रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, आप सर्जरी पे जाएंगे। हमने मेडिसिन दी, मेडिकल थेरेपी फेल हो गई, आप सर्जरी पे जाएंगे। वेजिकल स्टोन बनना शुरू हो गए हैं या डायवर्टिकुलाई बन गए हैं, आप सर्जरी पे जाएंगे। ये 4 चीजें एब्सोल्यूट इंडिकेशन है सर्जरी की। देन देयर इज नो रोल ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट। सर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक चीज है, अगर हम अपने मरीजों को करते हैं, एक तो हम उनको ये श्योर कराएं कि हर जो अपना बीपीएच है वो कैंसर नहीं बनेगा, और जरूरी नहीं है कि उसके लिए सर्जरी करानी पड़े। मैं अपनी सादा पेशेंट्स की लैंग्वेज में हम बात करें तो पहले उसको कंजर्वेटिव वॉचफुल वेटिंग पे रखें, और उसको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो वो कर सकता है, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स इंप्रूव कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस थोड़ी सी कर लेते हैं। ये पीरियोडिक मॉनिटरिंग लाइफस्टाइल एडवाइस क्या है? रात को जो भी चाय पीनी है, कैफीन लेनी है, वो आपने कोशिश करनी है शाम 6 बजे तक ले लें। पानी जो पीना है शाम 6 बजे तक ले लें, सो दैट आपको रात को उठना ना पड़े। फिर जो अल्कोहल हमारे तो सेटअप में नहीं है, और कैफीन कॉफी शॉफी इसको कम करें। फिर डबल वाइडिंग टेक्निक्स हैं, आप यूरिन करें, रोक लें दरमियान में, स्टॉप स्टार्ट। इनके 2 फायदे होते हैं मेल्स के अंदर। One is it gives a good control for the sexual performance, and second one is it gives a good control over your वाइडिंग। तो ये टेक्निक्स हैं। फिर इसी तरह अगर कोई कहता है कि मेरे पीछे यूरिन रह जाता है, तो वो ये मैंने सरोजे के ऊपर एक मौलाना साहब ने बताया था, उसने वहाँ पे क्वेश्चन किया था। आई वाज इन अमेरिका, 2nd ईयर एमबीबीएस की बात है, करोड़ पक्का में तश्कील में मैं जिंदगी में एक दफ़ा मौका मिला मुझे जाने का। तो वो पूछते थे कि मैं जब पेशाब करके आता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे कपड़े नापाक हो गए, तो कितना टाइम देना चाहिए? उन्होंने कहा जी आपने 35 मिनट वॉशरूम में बैठे रहना। तो 35 मिनट वॉशरूम में बैठना, या उन्होंने एक अल्टरनेट भी दिया था कि आप वॉशरूम से उठ के आ जाए, फिर 35 मिनट तक वॉक करें। तो उस दौरान आपको लगता है कि अगर ड्रिबलिंग होती है या पोस्ट वाइडिंग ड्रिबलिंग है तो फिर आप चले जाएं। तो उसका बेहतरीन हाल ये होता है कि मिल्किंग ऑफ द यूरेथ्रा। अगर आपको लगता है कि देयर इज समथिंग, तो हम मरीज को बताएं कि आप उसको मिल करके यूरिन निकाल दें, आप खाली कर लें अपना यूरेथ्रा, उससे आपको डबल वाइडिंग के लिए जाना नहीं पड़ेगा। पेनाइल स्क्वीजिंग है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है। एक बड़ी अहम एक्सरसाइज है जो मेरे को ओल्ड एज में आप कर सकते हैं। हाँ जी, एक वही एग्जैक्टली वही स्टॉप स्टार्ट वही वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों बैठ लेट जाएं आप, जैसे आप एग्जामिनेशन करते हैं, दोनों घुटने खड़े कर लें, उनके दौरान तकिया रख लें और उनको के प्रेस विद बोथ नीज। जो इनर साइड ऑफ द थाइज मसल्स हैं, आपको यूरोजेनिटल डायफ्राम के मसल्स हैं, इट विल स्ट्रेंथन। ये एक बड़ा खवातीन के अंदर जो इनकॉन्टिनेंस की पेशेंट्स हैं, दिस इज द बेस्ट। न्यूरोजेनिक ब्लैडर के अंदर बड़ा है। माय यंगर ब्रदर इज इन रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, ही इज द ओनली पर्सन इन लाहौर जो ये नर्व स्टिमुलेशन करता है। तो मेरा उसके साथ बड़ा वो रहा है। अभी रिसेंटली अ वेरी हाई प्रोफाइल पर्सन ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, his father-in-law was suffering from neurogenic bladder and he was not voiding at all since months कि उसको कैथेटर पे था, और नर्व स्टिमुलेशन से और एक्सरसाइजेस से, ब्लैडर एक्सरसाइज से, बिलीव मी ही इज नो वाइडिंग विदाउट एनी मेडिकेशन, ही इज ऑन सिंपल सेल्फ वाइडिंग। सो दीज आर द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ब्लैडर ट्रेनिंग्स हैं। मैं उसका भी बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट इस सारे सिनेरियोज के अंदर। आपके पास मरीज आते होंगे कि डॉक्टर साहब मैं आंख का ऑपरेशन कराने गया, मेरा पेशाब बंद हो गया।
यूजली आपका आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आंख में, वो अल्फा ड्रॉप्स डालते हैं, वो जाके क्या करते हैं कि नेक ऑफ ब्लैडर को टाइट कर देते हैं, पेशेंट रिटेंशन में चला जाता है। तो ऑलवेज सॉर्ट इट आउट कि दवाई के लिए वो कतरे तो नहीं ले रहे बाबा जी, क्या पता कैंप से वो इंद्र नाले वाले कैंप से कतरे ले रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको सॉर्ट आउट करना है। दिस इज नो द मेडिकल ट्रीटमेंट। इन मेडिकल ट्रीटमेंट वी हैव अल्फा ब्लॉकर्स। अब आ जाए अल्फा ब्लॉकर्स, मैंने क्यों कहा था, याद करें यूरिथ्रल नेक के ऊपर क्या था, ब्लैडर नेक के ऊपर यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स में क्या था, अल्फा रिसेप्टर्स थे, मतलब अल्फा बीटा रिसेप्टर्स दोनों ही कह लें आप, ठीक है, ए बी रिसेप्टर्स जिसे कहते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स थे, यूं कर लें सिंपैथेटिक फाइबर्स थे। तो उसके बाद 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं, फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स हैं। फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स जो हैं दे आर, यू ऑल नो वेरी वेल फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बट Tadalafil is well known and it is established that it has a good role for the management of the benign prostatic hyperplasia too. वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। Then muscarinic receptor agonist, muscarinic receptors parasympathetic के जो होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के निकोटीनिक और मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट भी देते हैं कि उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर हुआ हुआ है तो उसको रोकने के लिए। देन बीटा 3 एगोनिस्ट हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी है, ए बी अल्फा ब्लॉकर्स प्लस 5 ARIs है। ये हम वन बाय वन करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स आर 2 टाइप्स। वन इज नॉन सिलेक्टिव, आपको याद होगा आप लोगों ने, मैंने तो उसकी मेडिसिन ही देखी, फिनॉक्सीबेंजामीन आती होती थी नॉन सिलेक्टिव, फिर डक्साजोसिन है, प्रेजोसिन है, कार्डियूरा के नाम से बड़ी वेल नोन दवाई है। These all are short acting and long acting selective alpha blockers. Nowadays जो neck of bladder पे रिसेप्टर्स हैं वो हैं अल्फा 1A। सो मोस्ट सिलेक्टिव, क्योंकि जो आपको पता है जब अल्फा ब्लॉकर्स सिर्फ ब्लैडर पे ही नहीं ब्लॉक होंगे, वो पूरी बॉडी में ब्लॉक हो जाएंगे। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हमने देखा होगा, कार्डियूरा खाता मरीज आता है, चक्कर आगे गिर जाता है, आपको याद होगा, बड़ी नोटोरियस फैक्ट है इसका। नोअडेज 5 अल्फा 1A रिसेप्टर्स आर 3 ड्रग्स हैं, टेम्सुलोसिन, एल्फ्यूजोसिन एंड सिलोडोसिन। सिलोडोसिन अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है पाकिस्तान के अंदर, सारे उसके पीछे पड़े हुए हैं। टेम्सुलोसिन, अल्फ्यूजोसिन, सिलोडोसिन। अल्फ्यूजोसिन वेल नोन, जेट्राल एलपी आपको किसको नहीं पता, आप सब लोगों को पता है, देते भी हैं जेट्राल एलपी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर अल्फा 1A सिलेक्टिव, ये सिर्फ नेक ऑफ ब्लैडर पे जाके एक्ट करते हैं, तो हम इन्हीं पे बात कर लेते हैं। बाकी देखिए हमें रीसेंट एडवांसमेंट्स हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम इस पे कर लेते हैं। देन 5 अल्फा रिडक्टेज फिनेस्ट्राइड है, मेरे जैसे लोग गंजेपान के लिए भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर अब छूट गए हैं ट्रांसप्लांट आने के बाद। या उसके बाद ड्यूटेस्ट्राइड है, फिनेस्ट्राइड से ड्यूटेस्ट्राइड 50 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है, और फिनेस्ट्राइड से कुछ सिस्टेमिक इफेक्ट्स आते हैं, ड्यूटेस्ट्राइड से नहीं आते। ये क्या करती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन की डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्शन को कट कर देती हैं। जब कन्वर्ट नहीं होता, प्रोस्टेट रिग्रेस करना शुरू कर देता है। फॉस्फोडाइएस्टेट टैडालाफिल, ये लिविट्रा के नाम से आती है, बड़ी मशहूर दवाई है, यूज फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट हैं, सल्फिनासिन, ये भी प्रोस्टेट के लिए हम यूज करते हैं। बट आई थिंक सो the main our chunk is the main management of the prostate is limited to the use of alpha blockers और कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अल्फा ब्लॉकर होते हैं प्लस 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं, 5 ARIs होते हैं, हम उन्हीं पे बात कर लेते हैं। अब इसी पे जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, वही तस्वीर बार बार आ जाती है। ये देखें प्रोस्टेट बढ़ गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, इसके स्मूथ अब मैंने यहाँ पे प्रोस्टेट पे कहा था 2 चीजें थी, मसल थी, कोलेजन थी, एपिथेलियम थी। अगर तो प्रोस्टेट के अंदर स्मूथ मसल एलिमेंट ज्यादा है, अब अगला सवाल है वो कैसे पता चलेगा, वो सिर्फ बायोप्सी पे पता चल सकता है या थ्योरेटिकली हम उसको कह सकते हैं। अगर स्मूथ मसल ज्यादा है, आप अल्फा ब्लॉकर देंगे, इट विल गुड एंड इंप्रेसिव रिजल्ट्स। अगर एपिथेलियल कंपोनेंट ज्यादा है, आप 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स देंगे, इट हैज एन एक्सीलेंट रिजल्ट। अगर कोलेजन कंपोनेंट ज्यादा है तो किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोलेजन के ऊपर ना आपकी 5 ARIs एक्ट करते हैं ना अल्फा ब्लॉकर्स एक्ट करते हैं, क्योंकि अल्फा ब्लॉकर ने ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देना, प्रोस्टेट को और नेक के, और यहां से यूरिन आउटफ्लो बेहतर हो जाना। इसको इससे कंपेयर कर लें। ये मैंने आपको बता दिया, टेम्सुलोसिन, एल्फ्यूजोसिन, सिलोडोसिन, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट हैं, और इनकी आपने सिमिलर एफिकेसी एंड एप्रोप्रिएट डोजेस, नो डेमोंस्ट्रेटेबल इफेक्ट्स नहीं है इनका। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, अल्फा ब्लॉकर्स का डिजीज प्रोग्रेशन पे कोई रोल नहीं है, एक्चुअली दिस इज सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट।
This is symptomatic treatment. This is the message to carry for onward our discussion. Here ड्यूटेस्ट्राइड क्या करती है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स को इनहिबिट कर देगी, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा, प्रोस्टेटिन लार्ज नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता श्रंकन होना शुरू हो जाएगा। जब उसकी आप यूं कह सकते हैं कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है खुराक है प्रोस्टेट की, आपने प्रोस्टेट की खुराक बंद कर दी, खत्म। मैं कभी कभी समटाइम्स I not mention the personal experience over here, but it's my observation. The bureaucrats are very good observers. Maybe they are trained to listen to people, to resolve the complaints. There was a special secretary health. He was talking about me. What is prostatic artery embolization? I was little bit shocked. कहता कहाँ होती है पाकिस्तान में? तो कहता उससे प्रोस्टेट का साइज नहीं हम जल्दी खत्म कर सकते। मैं कहा why you asking? फिर उसने मुझे बताया कि मैं जर्मनी में रहा हूँ, मेरे वाले साहब को ये मसला था, तो मैंने उनकी प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन कराई और प्रोस्टेट रिग्रेस कर दी। ऑब्वियसली जब उसकी खत्म होगी, आर्टरी खत्म होगी, तो दुनिया यहाँ जा चुकी है और हम अभी 5 ARIs पे फिर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ड्यू डॉट महंगी बड़ी है। ये थोड़ा बहुत मेडिसिन की थी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपने 5 अल्फा ARIs कहाँ देने हैं, वो तमाम पेशेंट्स जिनके सिम्टम स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ अल्फा ब्लॉकर देने पे, जिनका डिजीज प्रोग्रेशन का चांस है, जिनका PSA रेज है, ठीक है, उस सूरत में आप कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे, अल्फा ब्लॉकर प्लस 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स देंगे। अल्फा ब्लॉकर सिम्टम्स को रिलीव कर देगा और ARIs क्या करेंगे, साइज को रिग्रेस करेंगे। अब मैंने कुछ दिन पहले ये पढ़ा था कहीं पे 20% साइज रिग्रेस हो जाता है प्रोस्टेट का, 100 ग्राम का तो 80 का हो जाएगा, 80 का है तो 74 का हो जाएगा 6 मंथ्स की थेरेपी देने के बाद। सो हम मरीज को ये बताएंगे कि ये एक दवाई अभी अमल करेगी, आपका साइज आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। मैंने अब बहुत से लोग देखे हैं, अब इसमें थोड़ी सस्ती दवाइयां भी आ गई हैं, अब वो कॉम्बिनेशन में वो दे दें अगर पेशेंट अफोर्डिंग ना हो तो 3 मंथ्स के बाद भी मैंने बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। और आप इसको मेजर कैसे करेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। IPSS स्कोर करेंगे, 50 to 30% इंप्रूव हो जाएगा। प्रोस्टेटिक वॉल्यूम 20% होता है, इन्होंने 28% लिखा हुआ है, ये फिर गोरों के प्रोस्टेट भी तो सादा से होते हैं ना। तो Qmax इंक्रीज 1.5 to 2.50 ml per second इंक्रीज हो जाता है। सिम्टम्स इंप्रूव डिपेंड्स ऑन इनिशियल प्रोस्टेट साइज, रिड्यूस रिस्क ऑफ AUR एंड BPH रिलेटेड सर्जरी। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते हैं ना, आपका सर्जरी का रिस्क भी कम हो जाता है। नो there are some side effects that is related to 5 alpha reductase inhibitors, erectile dysfunction, decreased libido, ejaculation disorders. जब आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ना, initially patient feel all these symptoms, but after some period over 6 months ये symptoms दोबारा रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। बात मैंने देखे हैं, बिलीव मी के बहुत ज्यादा जो है ये फैक्टर्स जो है आपको ट्रीटमेंट रोकनी पड़ जाती है। एक हमारा 45 ईयर्स का AG ऑफिस का पेशेंट था मेरा, मुझे याद है, हमें स्टॉप करनी पड़ी थी। तो इंसिडेंस इसका 1.2% लोगों में है, लेकिन इतना नहीं है कि मरीज को डरा दें, लेकिन आप थोड़ा सा बता दें कि आपको ये इश्यूज हो सकते हैं। देन टेडालाफिल मैंने आपको बताई थी, ये भी यूज होती है, बट हमारे पाकिस्तान में भी ना अप्रूव है, ना हमें इसको डिस्कस करना चाहिए। फर्स्ट ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, देखें जी, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, इंप्रूव सिम्टम्स फ्लो करता है जी, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इन 1 to 2 वीक्स, ये नहीं करता, ये कितने में करता है, 6 मंथ्स 5 ARIs। अल्फा ब्लॉकर तो फौरन सिम्टम रिलीव कर देता है ना, ये 6 मंथ्स में करता है। प्रिवेंट सिम्टोमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट टर्म करता है जी, ये भी करता है। सस्टेन्ड सिम्टोमेटिक बेनिफिट करता है। रिड्यूस प्रोस्टेटिक वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं करता, अल्फा ब्लॉकर ने तो प्रोस्टेट वॉल्यूम नहीं ना रिड्यूस करना, ये करते हैं। रिडक्शन से प्रोस्टेट वॉल्यूम करते हैं जी। लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ AUR ये करते हैं, वो नहीं करते। सो इनके ये फायदे और इसके ये फायदे अगर हम मिला दें तो सब कुछ ही हासिल हो गया। वक्ती रिलीफ भी मिल गया, लॉन्गर टर्म के अंदर भी हमारे पास आ गया। ये स्टडीज के कंपेयर्ड स्टडीज इनकी हैं, दिस इज आई थिंक वेरी ड्राई, आई नेवर एवर इन यूटिस्ट्राइड पर टेम्सुलोसिन, the only combination assessed for efficacy and safety in long-term randomized controlled trial, dutastride plus temsulosine, only combination with long-term evidence। और पाकिस्तान के अंदर भी ये मुख्तलिफ नाम से आ रही है। This is a very good drugs, मेरे ख्याल में हमें स्टार्ट ही यहीं से लेना चाहिए, and is very efficacious। This is about the surgical operations, I think so, no, this is all about the medical management of the prostate। Sir, the question is the quality of life।
if the patient is satisfied with his prostate symptoms, you can switch, you can stop. But in Pakistan or in overall the world, if you are giving only alpha blockers, it will continue for lifetime. If you are giving ARIs, if the prostate size comes to the normal limits, then you can switch, you can stop. But at least 1 year is required. अगर 1 साल तक बंदा ARIs खा लेना तो मेरा ख्याल है प्रोस्टेट काफी हद तक बेहतर हो जाता है, 20-40% तक कम हो जाता है. Simply ARI या नहीं सर, कॉम्बिनेशन देंगे. ARIs will not recommended alone, because the issue is ARIs will start to work after 6 months. 6 महीने तक जाते तो बाबे ने 10-6 डॉक्टर बदल लेने ने. तो so this is very important. You will start with the combination therapy if the score is in moderate line. If the score is moderate line, or there is a risk of disease progression. रिस्क क्या है? PSA ज्यादा है, उसके बाकी जो मैंने आपको चारों इंडिकेशंस बताई हैं वो बन रही हैं, सिम्टम्स आपने अल्फा ब्लॉकर दिया उसके सिम्टम्स आ ही जा रहे हैं. ये अब सर ने पूछा था स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या है. इनकॉन्टिनेंस क्या है? इनकॉन्टिनेंस इज इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ द यूरिन, कि आपकी मर्जी के बगैर पेशाब निकल गया. स्ट्रेस क्या है? कोई सा भी स्ट्रेस लिए, चलने से, स्नीजिंग से, छींके मारने से. आमतौर पे खवातीन में होता है जिन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा किए होते हैं, एसवीडीज जिनकी ज्यादा हुई होती हैं, तो खांसती हैं, यूरिन निकल जाता है. दिस इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. उसके लिए फिर अब एक पेशेंट है वो कॉम्बिनेशन थेरेपी पे है सर, और आपको 6 महीने बाद कराते हैं उसका PSA, उसको कैसे इवेल्युएट करें? जी एक मैं चीज जो शायद आई मिस्ड इट, कि जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है ये PSA को ऑलमोस्ट डबल कम कर देता है. ये भी लेवल उसको कम करता है, ये भी अपने जहन में रखना है. एक पेशेंट ने कॉम्बिनेशन थेरेपी पे PSA उसका लेवल था 8, आपने उसको ये कॉम्बिनेशन थेरेपी दी, अगर तो उसका जो PSA लेवल है 1 और 2 पे आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोस्टेट साइज है वो कम हो रहा है. अगर उसका PSA लेवल 4 ही रहा, हाफ हुआ है 6 महीने के बाद भी, इसका मतलब ये है कि वो ARIs का इफेक्ट है, ARIs का इफेक्ट है. सो विद कॉम्बिनेशन थेरेपी द प्रोस्टेट PSA लेवल शुड बी लेस देन 2. इफ यू से, मेरा मकसद कहने का ये था कि एक फर्ज करें एक पेशेंट का 15 आता है जी, उसको दवाई देते हैं, उसके बाद उसका 6 महीने बाद भी 15 है तो उसका नहीं सर अगर 15 है ना 10 से ऊपर है, यू विल असेस द पेशेंट्स फॉर CA कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी पे जाएंगे. एक पेशेंट थे मेरे पास के उनका हमने किया 2 दफा वापसी कराई सर नेगेटिव आई, नेगेटिव, एक दफा ठीक है. शौकत खानम से, एक दफा और एक थे वहाँ पे, तो वो लेकिन चूंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना था उसको दिया. अब उसका जो PSA है वो कोई 30 से पहले 30 तक था, अब वो 50 पे चला गया. आपको यहाँ पे प्रोस्टेटाइटिस रूल आउट करना चाहिए था, और प्रोस्टेटाइटिस इज द मोस्ट नोटोरियस इन्फेक्शन. नहीं उसमें 50 तक जा सकते हैं सर 150 तक जा सकते हैं, प्रोस्टेटाइटिस में भी जा सकते हैं. प्रोस्टेट स्पेसिफिक है ना, जब आपने उसका ट्रस्ट करा ली रूल आउट होगी. आपने DRE कर लिया, हार्ड प्रोस्टेट नहीं है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? या फॉल्स रीडिंग है, ठीक है, या प्रोस्टेटाइटिस है, या एक और भी ऑप्शन है कि जब वो कराने जाता है उसमें कैथेटर लगा हुआ है. नहीं उस पेशेंट में नहीं था. प्रोस्टेटाइटिस को कैसे? यस दैट इज इंपॉर्टेंट. प्रोस्टेटाइटिस इज वेरी नोटोरियस इन्फेक्शन. अगर आपको लगता है कि प्रोस्टेटाइटिस आपने अपना डायग्नोसिस बना लिया है तो उसके लिए ओफ्लॉक्सासिन जो आती है, नोक्साबिड के नाम से आती है, दैट इज 1 BD फॉर 4 वीक्स. 4 वीक नहीं खाएगा तो कोई नहीं ठीक होना, फिर हो जाएगा दोबारा. नहीं उसमें यूरिन में कोई फाइंडिंग आई थी? यूरिन नहीं, उसमें प्रोस्टेटिक मसाज होता है वो जनवरी 4 इज समथिंग दैट इज नॉट मीन फॉर इन्फेक्शन के लिए इन्फेक्शन एंटीबायोटिक ही देना पड़ेगा. वो तो लोअर यूनिट एक्ट पेन टेरिविड कह लें, फ्लोक्सासिन. प्रोस्टेट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं आपको ब्रांड नेम इसलिए बता रहा हूँ कि हमें उस पे ही रहना चाहिए फोकस. अभी तो वैसे तो फास्फोमाइसिन के भी रिजल्ट्स आ गए हैं अभी उसमें अफ्लोवेट कितने मिलीग्राम आपने BD का? 400 मिलीग्राम BD फॉर 4 वीक्स 1 मंथ. ठीक है, एक चीज इसमें याद रखनी है कि जो प्रोस्टेटाइटिस है ना, उसके लिए टेस्ट ऑफ चॉइस इज प्रोस्टेटिक मसाज. हाँ वो नहीं कर सकते हम. नहीं, कल्चर नेगेटिव आएगा, यूरिन कल्चर नेगेटिव होगा. मे और मे नॉट नेगेटिव, मोस्टली नेगेटिव होता है. क्लिनिकली आप करेंगे. उसमें देखिए 2 पेशेंट के आ चुके हैं नेगेटिव उसके वापसी. सर आप उसका DRE करें. अगर उस पे सॉफ्ट प्रोस्टेट है, कोई इस पे हार्ड फाइंडिंग्स नहीं है, तो आप फिर उनका प्रोस्टेटाइटिस की ट्रीटमेंट शुरू करें वो, और डेफिनेटली वो ठीक हो जाएंगे. और मैं अभी रिसेंटली एक पेशेंट है, मतलब मेरे वालिद साहब
के रेफरेंस को जानने वाले थे, मैं तो उनको नहीं जानता था, उन्होंने कहीं से मुझे कांटेक्ट किया। ही लिव्स इन द साहिवाल, आई एम बेसिकली फ्रॉम साहिवाल। तो वो आड़ती हैं मंडी में, तो आप यकीन करेंगे कि उसको कितने टेंजो लगे होंगे, टेंजो इंजेक्शन। वो सेप्सिस में चला गया तो वहाँ के मेडिकल स्पेशलिस्ट ने उसको टेंजो लगवाए। डू यू इमेजिन 160 टेंजो लगवाए उसको, 160। और ये किसी, सॉरी टू से, हम कहते हैं जी जीपीज ने ये कर दिया, क्वैक्स ने ये कर दिया, एंड इट दिस वाज डन बाय एन मेडिकल स्पेशलिस्ट। 160 उसने मुझे, मैंने कहा दिखा, उसने मुझे लिटरली रसीदें दिखाई। 160 टेंजो, 2 टेंजो बीडी के उसको लगते रहे। किस लिए जी? यूरोसेप्सिस। ओ भाई यूरोसेप्सिस है क्या? पीएसए कहाँ था उसका? 16 पे। मैंने उसको सिंपली, हमने उसको इस पे ही रखा, इनॉक्साबिड पे। ठीक है, थोड़ी सी टॉलरेट करने में प्रॉब्लम होता है, इनॉक्साबिड में चक्कर शक्कर की लोग कंप्लेंट करते हैं, बार दफा कर भी जाते हैं। तो इनॉक्साबिड बेहतर है या अफ्लोबिड? दोनों में मैं इनॉक्साबिड, मेरा उस पर बिलीव है। हालांकि मेरा ख्याल मेरे से वो कंपनी वाला कभी मिला भी नहीं जिंदगी में नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन मेरे उसके एक्सपीरियंस अच्छे हैं। जैसे कुछ दवाइयां हैं, मतलब एक ज़ोपेंट के नाम से आपको पता है पेंटोप्राजोल आती है, मुझे बड़ी पसंद है, मैं समझता हूँ ये सबसे बेहतर है। 40 मिलीग्राम ओडी में दे दो, मरीज बेहतर है। आपका अपने एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ दवाइयां होती हैं वो आपके कलम के नीचे आती हैं, तो मेरा इनॉक्साबिड पे बड़ा है। जो मेरा प्रोस्टेटाइटिस ठीक नहीं हुआ, मैंने इनॉक्साबिड पे डाला, वो ठीक हो गया। वो कितनी देर? सर 4 मंथ्स, सॉरी 4 वीक्स, 4 वीक्स पूरे कराने हैं आप। हाँ, उसकी रीजन है कि, अच्छा अब अगला सवाल ये आता है कि इतनी लंबी एंटीबायोटिक क्यों देते हैं और क्यों? MIC वैल्यूज उसमें नहीं जाते। आपको पता है कि प्रोस्टेटिक कैप्सूल होता है, ठीक है, प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस उसके बाहर होता है, ठीक है, तो ब्लड की वहां पे कंसंट्रेशन इतनी नहीं हो पाती कि वो प्रोस्टेट के टिश्यूज के तक चला जाए। तो सो अब लॉन्ग टर्म के दे के लिए उसको सस्टेन्ड रिलीज इंश्योर करते हैं एंटीबायोटिक की, तो वो जाके फिर प्रोस्टेटाइटिस को जाके ना ठीक करता है। अच्छा, अगर एक कॉम्बिनेशन पे है, उसका हमने PS से चेक करना है एक्चुअल, जब वो ले रहा है तब तो उसका हाफ आएगा। हाँ जी, कम हो जाए। उसको कितनी देर बंद करके, 1 महीना अगर सर हमने बंद करना ही नहीं है। नहीं, अगर बंद करके चेक करते हैं तो कितनी देर जो अल्फा रिडक्टिव 5 अल्फा रिडक्टिव देने में 3 से 6 मंथ्स लग जाएंगे उसको। अच्छा, इसलिए आपने बंद नहीं करना, आप उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए ना, अगर एक पेशेंट का 1.2 से नहीं 1.4 से नीचे है, लेस देन 2 कर लेना, तो और वो पॉइंट्स में आता है, तो आपका मतलब आपका काम, थेरेपी ठीक काम कर रही है। तो अगर उससे थोड़ा ऊपर आता है तो देन यू शुड सी फॉर अल्टरनेट ऑप्शंस। ठीक है। तो मतलब यही मैंने आपको कहा था कि हमने 2 चीज़ों पे करना है कि हर रेस PSA कार्सिनोमा प्रोस्टेट नहीं होता। मेरा इस पे रिसर्च पेपर भी था, ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी पे भी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। तो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस था वो ये था कि जिनका PSA 6 से 10 के दरमियान में हो और प्रोस्टेट साइज 50 ग्राम से ज़्यादा हो, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। जी मेरा ज़ाती रिसर्च पेपर अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ। तो जिनमें PSA जो है 6 से 10 भी हो लेकिन प्रोस्टेट साइज 50 से कम हो और उम्र भी कम हो, उनमें चांस कम होता है कार्सिनोमा। वो भी ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल एक में का मेरा रिजल्ट 13% था, एक का कुछ 17% था। अच्छा, तो वो भी इतना ज्यादा नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट एनी क्वेश्चन? थैंक यू।